કે તમારા ગાઈડલાઇન્સમાં એવું કઈ છે કે ભાઈ ડોમેસ્ટિક હેલ્પ કેન બી સ્ટાર્ટેડ? તો કહે કે અમે ગાઈડલાઇન ને એ બી ક્યારે લખ્યું હતું કે ડોમેસ્ટિક હેલ્પ હેઝ ટુ બી રિમૂવ્ડ? એટલે એવું લખેલું તો બતાવો. રાઈટ. કે સરકારના ગાઈડલાઇનમાં કોઈ દિવસ હતું નહીં. બધા તમે લોકો આઉટ ઓફ ફિયર યુ હેવ મેડ યોર ઓન ગાઈડલાઇન્સ. ધેટ્સ રાઈટ. અને બધા સોસાયટી એટલું સ્ટ્રિક્ટ ગાઈડલાઇન કરીને બધા એક નવી વસ્તુ જેના માટે ગવર્મેન્ટ બિલકુલ સાક્ષ્ય નથી, ગવર્મેન્ટ પાસે ગવર્મેન્ટ નથી કહેતી. લોકો બધા સેનિટાઈઝર, હ્યુમન સેનિટાઈઝર લગાવી દીધા કે અંદર ઘૂસીને તમે સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇટના સેલ્ફથી સેનિટાઈઝ થાઓ, એનાથી કોરોના દૂર થઈ જશે. લોકોને ખ્યાલ જ નથી કે કોરોનાનું ઇન્ફેક્શન અંદરથી આવે છે, લંગ્સમાંથી આવે છે. અવની ઇઝ ધેર. बात करो उससे अवनी को ज्वाइन करो. So we will start with Aniket. Yes sir. હવે અનિકેત, મને જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે કે you were a person in your family who was very positive about this surgery. Right. કે આપણે બેરિયાટ્રિક સર્જરી કરાવવું છે કેમ કે આપણને વેટ લૂઝ કરવું છે. અને વેટ કેમ લૂઝ કરવું છે? બીકોઝ ઘણા બધા ઓપ્શન્સ કર્યા પછી પણ વેટ ઉતરતું નથી. અને ઇન ધ પ્રોસેસ વેટ લોસ થયું. ઇન ધ પ્રોસેસ પછી તમે કોઈ બિઝનેસના હિસાબે બહારની ટ્રીપ પર ગયા, તમે પાછા આવ્યા તો તમને કોઈ એવી તકલીફ નથી, ખાલી તમને સ્મેલ અને ટેસ્ટમાં થોડો પ્રોબ્લેમ લાગતો હતો અને તમે ટેસ્ટ કરાવવા ગયા અને પોઝિટિવ આવ્યા. હવે વાત પોઝિટિવની નથી. ત્યારે જ્યારે કોરોના ઇન્ડિયામાં ચાલુ થયું હતું, ખરેખર કોઈને ખબર નથી કે આનું ટ્રીટમેન્ટ શું, કેવી રીતે એને હેન્ડલ કરવું જોઈએ. બસ એક જ વસ્તુ બધાને મગજમાં બેસિક છે કે કંઈ ખબર નથી, એટલા માટે લોકડાઉન મૂકી દીધું બધા. એન્ડ ધેટ વોઝ અ ની એન્ડ જર્ક રિએક્શન કે એક વાર લોકડાઉનમાં જાઓ એનાથી કદાચ કોરોના નહીં ફેલાય. તો અનિકેત, તમને એ પૂછવાનું ખાસ મારો મંતવ્ય છે કે તારી સ્ટોરી મને શોર્ટમાં બધા સ્ટુડન્ટ માટે કે બધા મતલબ મારા આપણા દર્શક મિત્રો માટે 5 વાગી ગયા છે, તો બધા દર્શક મિત્રો માટે એક જ વસ્તુ મારે જાણવું છે કે તારું એક્સપિરિયન્સ, પછી હું મિત્વા જોડે વાત કરીશ. ઓકે. કે વોઝ કોરોના વન્સ ઇટ હેપન્ડ, પહેલી ફિલિંગ તારા મગજમાં શું આવી? કેમ કે એકદમ નવું હતું, તને ભીખ લાગી તો કેટલી ભીખ લાગી, શું કર્યું તે? વોટ વોઝ યોર રિએક્શન ફર્સ્ટ? એક્સેપ્ટ ટોકિંગ ટુ અસ, વોટ વોઝ યોર રિએક્શન ફર્સ્ટ? ઓકે. અને આપણે ગુજરાતી દર્શકો છે તો આપણે ગુજરાતી હિન્દી મિક્સમાં વાત કરી શકીએ. ઓકે સર. હા નિકેત, we will start Aniket with you. Yeah. So હું મારા બિઝનેસના કામથી 14th માર્ચ દુબઈ ગયો હતો ફોર 3 days. હું 17th માર્ચે પાછો આવ્યો છું અને પાછો આવ્યા પછી 2 દિવસ 19th I was totally. Aniket, we are not getting your voice. Lockdown हो गया. अच्छा मितवा, तू हाँ मितवा. Yes sir. By the time Aniket logs in and the internet connect. See, what was your reaction first the day you thought कि अरे इन्हें corona positive आया है? What was your first reaction? Yeah, actually when I personally got to know, મને ખબર પડી ત્યારે I was really tensed and I just broke down. કારણ કે આજે આખા વર્લ્ડમાં આ વસ્તુનો જે હોવાપો છે એ પછી એકચ્યુઅલી અવેરનેસ તો મારામાં હતી જ નહીં કે એટલું બધું સિરિયસ નથી હોતું. એવું જ ફિલિંગ હતી કે કોરોના થાય એટલે માણસ બહુ જીવે નહીં. ઇટ્સ ધી એન્ડ. So things did not fall that way. We were lucky enough for that, and very lucky on the other side that he had no symptoms, which was the best thing. Throughout the 32 days of the journey of corona, he never had any symptoms. એ આપણા માટે એક બહુ જ સારી સાઇન હતી. પણ જ્યારે મને ખબર પડી, I broke down. મને કોઈ પોઝિટિવ થોટ્સ ફોર અ વાઇલ, ફોર સે લાઈક 2-3 days તો આયા જ નતા, ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક. I just kept on thinking all negative things. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે ઠીક છે, ચલો આપણે નેગેટિવ છીએ, અમે બી નેગેટિવ હતા. ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક, નોટ અબાઉટ અનિકેત,
બસ Yes. યુ આર નોટ નોઈંગ એનીથિંગ અબાઉટ કોરોના. yes કોરોના right. માટે કંઈ ખબર ના હોય, કોઈ ગાઈડલાઈન ના હોય, તો એને ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે કરવી, કેવી રીતે નહીં કરવી. હું મારો બી એક્સપિરિયન્સ તમારા બધા દર્શક મિત્રો જોડે 100% શેર કરીશ. પણ પહેલું કે હવે 3-4 દિવસ વીતી ગયા મિતવા. Yeah. જ્યારે 3-4 દિવસ વીતી ગયા તો યુ મસ્ટ બી વિઝિટિંગ હિમ ઇન ટુ ધ હોસ્પિટલ. ભલે અંદર નહીં જાય પણ બહાર સુધી તો તું રોજ જતી જ હશે ને. ના સર, ઇટ વોઝ નોટ અલાઉડ. અને ખાવા પીવાનું પણ આપવાનું નતું અલાઉડ ઘરેથી. એના માટે એને કમ્ફર્ટેબલ વસ્તુઓ કોઈ પણ જોઈતી હોય જે એનો કદાચ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકે એમાં, એઝ એક્ઝામ્પલ અ લેપટોપ, એ કશું આપવાનું એને અલાઉડ નતું. સો આઈ કુડ નોટ સી હિમ ફોર 32 લોંગ ડેઝ. આઈ હેવ નોટ મેટ હિમ એઝ વેલ. સો એ સ્ટ્રેસ જે 32 લોંગ ડેઝ નું સ્ટ્રેસ છે, Yeah. એટલે કોણ ન્યૂઝ આપે કે ના આ નિકેત સારો છે, નિકેતના પ્રોબ્લેમ્સ નથી અને થોડું સ્ટ્રેસ ઓછું થયું હોય તને? હા, હવે ટુ બી પ્રિસાઇઝ અબાઉટ ધેટ, તો જ્યારે અનિકેત એસવીપી માં ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં જ્યારે એડમિટ હતા ત્યારે તો હી હેડ હિઝ ફોન. એટલે એ એમની હેલ્થ સ્ટેબલ હતી એટલે એ મારી સાથે વાત કરતા હતા, મને ઇન્ફોર્મ કરતા હતા, બધું થતું હતું. પણ ઓલવેઝ એક હ્યુમન સાયકોલોજી છે કે આજે ડોક્ટર કે આપણને કે આજે તમે છો તો તમે મને એમ કહો કે ના અનિકેત ઇઝ ફિટ એન્ડ ફાઇન, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, હી વિલ બી બેક હોમ સૂન. તો એ જે તમારા બોલેલા વર્ડ્સ છે એની મારા મેન્ટલ હેલ્થ પર બહુ જ ઇફેક્ટ થવાની છે. પણ વેરેઝ અનિકેત મને એમ કહેવાનું જેટલું એને ખબર જ છે એ જ મને સર એ કહેવાનું છે, રાઈટ? Every time we used to ask the doctors, we were given numbers of the appointed doctors for the particular ward. તો એ લોકો દર વખતે એવું જ કહેતા હતા, હા એ સ્ટેબલ છે, એ સ્ટેબલ છે. બટ યુ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ ધી આન્સર કે હા એ સ્ટેબલ છે. એક સ્ટેબલ કહી દેવાથી સામે ઘરે જે આટલા દિવસથી ઘરે માણસ એકલું છે એ એની મગજની સ્થિતિ જાણ્યા પછી તમે એમ કહી દો કે એ સ્ટેબલ છે. That is not the answer. I never got proper answers from SVP till he was in SVP. Yes, after shifting him to the private hospital, that is Sterling, ત્યાં અતુલ સરે, કેતન સરે, એ લોકોએ જે રિસ્પોન્સ આપ્યો ડે ટુ ડે, એ મારા ફાધર ઇન લો સાથે વાત કરતા હતા. મારા ફાધર ઇન લો 2-3 વાર એમને પર્સનલી ત્યારે જઈને મળ્યા, તમારી સાથે વાત કરી. એ બધા પછી આઈ વોઝ રિયલી રિલેક્સ્ડ. આઈ થોટ નાઉ માય હસબન્ડ ઇઝ ઇન સેફ હેન્ડ્સ. એટલે હું ડરમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી ત્યારે. હવે અનિકેત, સર, આ જ વસ્તુ હું તને કહું કે હવે યુ આર એડમિટેડ ઇન અ હોસ્પિટલ, ઇન અ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ, કેમ કે ત્યારે તો પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં અલાઉ જ નહોતું. અને ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં વેરી ફ્રેન્કલી કોઈને ખબર નહોતું કે આ રોગ શું અને ટ્રીટમેન્ટ શું. વિટામિન સી ની ગોળી આપીએ કે આમ કરીએ, તો તારું જે પોતાનું એક્સપિરિયન્સ છે એઝ પર કે તને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને તારા કોઈ પણ રિપોર્ટ નેગેટિવ નથી આવતા અને તને જવા નથી દેતા. તો વોટ વોઝ યોર થોટ પ્રોસેસ ઇન ધોઝ 30 days? સર, ધોઝ 30 days, આ 30 દિવસમાં મેં ઓલવેઝ એક જ વસ્તુની વેટ કરી છે કે મારો રિપોર્ટ નેગેટિવ ક્યારે આવે છે. બીકોઝ ધ થિંગ ઇઝ, હું જ્યારથી એડમિટ થયો હતો ત્યારથી લઈને જ્યાર સુધી હું ડિસ્ચાર્જ નથી થયો ત્યાં સુધી એ 32 દિવસમાં મને એક પણ સિમ્ટમ્સ ડેવલપ નથી. 96.5 મારું ટેમ્પરેચર રહેતું હતું, એ 96.6 નથી થયું આટલા દિવસમાં ક્યારેય. અને મને કોઈ પણ કફિંગ કે કોઈ પણ જેટલા પણ લક્ષણો કે સિમ્ટમ્સ આપણને ગાઈડલાઈનમાં કે બધી જગ્યાએ બતાવવામાં આવે છે કે કોવિડ થાય તો આટલા સિમ્ટમ્સ હોઈ શકે છે, એમાંના કોઈ સિમ્ટમ્સ મને ક્યારેય થયા નથી. એટલે જ્યારે પણ મારો ટેસ્ટ લેવાતો હતો ત્યારે મને એક જ ફિલિંગ હતું કે આ રિપોર્ટ મારો નેગેટિવ જ આવશે, કારણ કે મને હેલ્થ રિલેટેડ કોઈ ઇશ્યુ હતા જ નહીં. અને જ્યારે આવા રિપોર્ટ્સ આવતા હતા ત્યારે મને ખબર નથી પડતી કે મારો આવો રિપોર્ટ પોઝિટિવ શેના માટે આવે છે. અને મારો રિપોર્ટ અગેન કોઈ દિવસ ક્લિયર પોઝિટિવ નથી આવ્યો. 32 દિવસમાં જેટલા પણ મારા 11 ટાઈમ્સ ટેસ્ટિંગ થયા છે અને એ 11 ટેસ્ટિંગ્સમાંથી ક્લિયર પોઝિટિવ રિપોર્ટ એક પણ નથી. બધા જ રિપોર્ટ ઇનકન્ક્લુઝિવ ને ઇનડિટર્મિનેટ આવતા હતા. બટ ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ એવી હતી કે ઇનકન્ક્લુઝિવ રિપોર્ટ્સને પોઝિટિવ ટ્રીટ કરવા. એટલે હું તો એટલો બધો સ્ટ્રેસમાં હતો કે રિપોર્ટ મને કઈ છે નહીં તે છતાં પોઝિટિવ આવે છે અને એ ક્યારે નેગેટિવ થશે એ ખબર નથી. અને એ વખતે 2 કોન્ઝિક્યુટિવ નેગેટિવ્સની ગાઈડલાઈન હતી. એટલે આઈ વોઝ જસ્ટ હોપિંગ એન્ડ પ્રેઇંગ એન્ડ એવરીબડી વોઝ પ્રેઇંગ ધ સેમ થિંગ કે ક્યારે 2 નેગેટિવ આવે ને હું ક્યારે ઘરે આવું. જો તમને સેજ પણ એવું ડાઉટ ગયો એકે વાર કે આ રિપોર્ટ જે થાય છે ખરેખર એક્યુરેટ છે? સર, મને ડાઉટ નહીં, હું શ્યોર છું કે એક્યુરેટ નથી.
મને ડાઉટ નથી, હું શ્યોર છું કે મેં જ્યારથી પહેલો રિપોર્ટ કરાવ્યો એ વખતથી લઈને છેલ્લે સુધી જેટલા પણ મારા રિપોર્ટ્સ આવ્યા છે, બીકોઝ ધ થિંગ ઇઝ કે 18 એવા ઇન્સ્ટન્સીસ થયા છે એસવીપીમાં કે સવારના 6 વાગે મારો સેમ્પલ ડ્રો કર્યું હોય અને બપોર 1 વાગે નેગેટિવ આવ્યો હોય, ફરીથી સાંજે 8 વાગે રિપોર્ટ કર્યો હોય, એનો રિપોર્ટ અર્લી મોર્નિંગ નેક્સ્ટ ડે આવે અને એ ઇનકન્ક્લુઝિવ કે ઇનડિટર્મિનેટ હોય, તો એક નોર્મલ સાયકોલોજી રૂલ કરે છે કે આટલા જ ટાઈમના ડિફરન્સમાં ઓનલી અ ટાઈમ ગેપ ઓફ લેટ્સ સે 12 અવર્સ, 12 કલાકની અંદર એક રિપોર્ટ નેગેટિવ અને એક રિપોર્ટ ઇનડિટર્મિનેટ કે પોઝિટિવ, એવું કેવી રીતે થઈ શકે? ઇફ ધેર ઇઝ ફોલ્સ નેગેટિવ, એ લોકો એવું કહેતા હતા કે આ ફોલ્સ નેગેટિવ હોવાના ચાન્સીસ છે, પણ ફોલ્સ પોઝિટિવ ના હોઈ શકે. બટ ધેન ઇફ ઇટ ઇઝ અ ફોલ્સ નેગેટિવ, તો એવરી ટાઈમ ઇટ ઇઝ અ ફોલ્સ નેગેટિવ દર વખત. અને મારા જ કેસમાં એવું થાય કે ફોલ્સ નેગેટિવ આવે, એવું સમજાતું નતું મને ક્યારે. પછી વેન આઈ વોઝ શિફ્ટેડ ટુ સ્ટર્લિંગ, ત્યાં ડોક્ટર અતુલ પટેલ, હુ યુ ઓલ્સો નો હિમ, ઇઝ અ વેરી સિનિયર ડોક્ટર, તો એમને મને એક્સપ્લેન કર્યું કે એઝ સચ આ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ છે એની એક્યુરસી 65% છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. અને અગેન આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ જીન ડિટેક્ટ કરે છે, ઇટ ઇઝ નોટ શોઈંગ વેધર ધ વાયરસ ઇઝ એક્ટિવ ઓર નોટ. એટલે અગેન મારા બોડીની અંદર વાયરસ હતો, એ ઇનએક્ટિવ થઈ ગયો છે, મારી ઇમ્યુનિટીએ એને ઓલરેડી હરાવી દીધો છે એ વાયરસને. પણ જો એના કોઈ પણ પ્રોટીન ના કોઈ પણ લેટ્સ સે શેલ કે ઇનએક્ટિવ વાયરસ જો મારી બોડીની અંદર પ્રિવેલ છે, તો રિપોર્ટ પોઝિટિવ હશે. બટ આઈ એમ આઉટ ઓફ ધેટ ડિસઓર્ડર, કે હું એનાથી, મારે એમાં કઈ ચિંતા જેવું કશું છે નહીં, કારણ કે એ વસ્તુ ઓલરેડી મારા બોડીએ ડિફીટ કરી દીધી છે. તો બહુ સરસ પ્રશ્ન તમારા જવાબ ઉપરથી એક મને મગજમાં આવે છે કે ધેટ મીન્સ કે યોર ઇમ્યુનિટી વર્કડ ફ્રોમ ડે વન. યસ સર. યોર ઇમ્યુનિટી વોઝ ધેર, જેના હિસાબે એ વાયરસ તમારા અંદર ઘૂસ્યો પણ તમને પ્રોબ્લેમ નહીં આપી શક્યો. I'll tell you detail. હું 17th માર્ચે હું દુબઈથી પાછો આવ્યો અને 19th સુધી હું 2 દિવસ ઓફિસ ગયો અને પછી મેં ઘરે રહેવાનું ચાલુ કર્યું, બીકોઝ આઈ વોઝ હોમ ક્વોરન્ટાઇન. મને ફોન આવતા હતા કે તમે ફોરેન થી આવ્યા છો એટલે યુ કેનોટ ગો આઉટ, યુ હેવ ટુ બી હોમ ક્વોરન્ટાઇન. એટલે હું ઘરે ને ઘરે જ હતો. પછી 25th માર્ચે મને લોસ ઓફ ટેસ્ટ અને સ્મેલ એવું મને ફીલ થયું કે મને કશો ટેસ્ટ નથી આવતો ને મને કોઈ સ્મેલ્સ બી નથી આવતી. એટલે નોર્મલ ટેન્ડન્સી આપણે તરત જ ગૂગલ કરીએ, એટલે મેં ગૂગલ કર્યું, એટલે મેં એવું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે રિસન્ટલી એ લોકોએ એવું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે WHO એ કે અત્યારે એવા સિમ્પટોમેટિક પેશન્ટ્સ એ લોકોને મળ્યા છે કે જેમને ખાલી આ એકમાત્ર ઇસ્યુ હોય, લોસ ઓફ ટેસ્ટ એન્ડ સ્મેલ, અધરવાઇઝ એમને કોઈ જ પણ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. પણ ધેટ ઇઝ અ સાઇન ઓફ કોવિડ. અને પછી પણ મને બીજું કંઈ નતું થતું, એટલે આઈ વોઝ ઇન અ પ્રિઝમ્પશન કે મને કંઈક કદાચ શરદી થઈ હશે કે એના કારણે મારું નાક બંધ થઈ ગયું હોય ને મને સ્મેલ ના આવતી હોય, એવું પોસિબલ છે. પછી આઈ ગોટ ટુ નો કે 27th પ્રાઇવેટ લેબોરેટરીની એ લોકોએ છૂટ આપી દીધી છે ટેસ્ટ કરવા માટે. એટલે ટુ બી આઈ વોઝ વિથ માય વાઇફ એન્ડ 5-year-old કિડ, એટલે એ લોકોની સેફટી માટે થઈને મેં એવું વિચાર્યું કે આઈ વિલ ગો એન્ડ ગેટ માય સેલ્ફ ટેસ્ટેડ. અને એ વખતે 25મીએ જે મને સિમ્પટમ્સ થયા હતા, 27th ઓલમોસ્ટ આઈ હેડ રિકવર્ડ 50 to 60% ફ્રોમ ધેટ. મને ટેસ્ટ પણ આવવા માંડ્યો હતો, પૂરો નહીં પણ થોડો થોડો, અને સ્મેલ પણ થોડી થોડી આવવા માંડી હતી. એટલે આઈ વોઝ શ્યોર કે મને કંઈ છે નહીં, મારો ટેસ્ટ તો નેગેટિવ જ આવશે. પણ ધ જર્ની સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ધેર. 27th મેં રિપોર્ટ કરાયો. યુઝ્યુઅલી એ લોકોનો રિપોર્ટ નેક્સ્ટ ડે એ લોકો આપી દે છે. એટલે 28th આઈ કોલ્ડ ધેમ એટ સુપ્રાટેક કે મારો ટેસ્ટ ગઈકાલે કલેક્ટ કર્યો છે, એનું રિઝલ્ટ શું છે. તો એ લોકોએ પહેલા તો મને એવું કહી દીધું કે તમારા બધાના રિપોર્ટ્સ નેગેટિવ છે, આજના લોટમાં કોઈનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ છે નહીં. એટલે વી વર રિલીવ્ડ. પછી મને સંદીપભાઈનો ફોન આવ્યો છે, હી ઇઝ ધ ઓનર એટ સુપ્રાટેક, અને he called me after half an hour and he told me that only 2 reports are pending, that is of mine and my brother. He was also traveling with me at the same time to Dubai. એટલે અમારા બેવનો જ રિપોર્ટ બાકી છે એવું એમને મને કહ્યું. એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે રિપોર્ટમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે, કારણ કે બધા રિપોર્ટ્સનું રિઝલ્ટ આવી ગયું ને અમારા બેનું જ કેમ બાકી છે.
he told me કે અમને ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમારો ટેસ્ટ ચલાવ્યો એ વખતે અમને કોઈ ક્લિયર રિઝલ્ટ ના મળ્યું, એટલે અમે ટેસ્ટ રીરન કરવા માટે મૂક્યો છે અને એનું રિઝલ્ટ કાલ સવાર સુધીમાં આવશે. એટલે and he told કે મારા બ્રધરનો રિપોર્ટ નેગેટિવ છે, બટ એઝ he was traveling with me they have also his test for rerun. એટલે અમારા બેવનો રીરન કર્યો એમને ટેસ્ટ, અને નેક્સ્ટ ડે મોર્નિંગ એને મને મેલ આવ્યો. ત્યારે એ પહેલા તો એએમસી ના બધા જ માણસો મારા ઘરની બહાર મારા આગમન માટે વેઇટ કરતા હતા, પણ the time I got the news કે I was positive and my brother Jimit was negative, એટલે આપણે તો મને એકદમ શોકિંગ ફીલ થયું કે મને કશું જ નથી થતું તે છતાં પણ મારો રિપોર્ટ પોઝિટિવ છે. હા, તો એના અંદર તમને બધાને હવે તો એકચ્યુઅલી ઓલરેડી 50-60 ડેઝ ઇન્ડિયામાં 30 જાન્યુઆરી ફર્સ્ટ કેસ રિપોર્ટ થયો હતો અને ઇન્ડિયામાં એટલું દિવસ થઈ ગયું છે. વી હેવ ઓલ્સો સ્ટડીડ કોરોના, બીજું કોઈ કામ તો છે નહીં કરવા માટે. સો વી આર ફોલોઈંગ અવર પેશન્ટ્સ, ડુઈંગ અ લોટ ઓફ વેબિનાર્સ, અને ઓબેસિટી સર્જરી સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાના હું પ્રેસિડેન્ટ પણ છું. તો અત્યારે વી હેવ ડન અ લોટ ઓન રિસર્ચ ઓન કોરોના, અને ઘણા બધા દર્દીઓ મારા, ઘણા બધા બીજા ડોક્ટરના દર્દી, અમારા દર્દી જેના સર્જરી પછી कोरोना थे, एवा बनाओ ऐसे बनाओ बने जिसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑपरेशन तो करा लिया, किसी ने 4 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 1 साल पहले, और उनको कोरोना हुआ. और ऐसे टोटल अभी मेरे पास 20 केस हैं पूरे इंडिया से, जिसमें से हमारे टोटल 3 पेशेंट हैं. और ये चीज अचंभित है कि जितने लोगों को कोरोना हुआ उसमें से किसी को कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुआ. तो क्या ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, इस बात के डाटा को निकाल रहे हैं, क्या ओबेसिटी घट जाने से, क्योंकि ऑलमोस्ट 35% ऑफ ओबीस पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं यूके में, अपना पास डाटा तो है नहीं, यूके का डाटा है, वो लोग ओबीस हैं जो आईसीयू में एडमिट होते हैं. Okay. तो वहां पे ओबेसिटी इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोना, एंड डायबिटीज इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोना. Yes. तो ऐसा कहीं से एक फील हुआ कि अगर जो तुम उतने दिन 30 दिन वहां रहे, काफी सारे पेशेंट इधर उधर आपस में रहेंगे, तो आपको ऐसा लगता था कि काफी सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो ओबीज हैं, और जो कोरोना, ओबीज मतलब बहुत मोटे नहीं पर ओबीज हैं, बहुत मोटे भी, कम मोटे भी, और जिनको कोरोना हुआ है वैसे एडमिट हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट की संख्या कैसी रही होगी उनके? सर मैं 30 डेज तक एसवीपी में एडमिट था, तो वैसे देखने जाए तो आई वॉज द सीनियर मोस्ट पेशेंट एडमिटेड इन द जनरल वार्ड. तो जितने भी लोग आए वो सब मेरे पीछे आए और मेरे से पहले चले गए थे घर पे. आई डोंट नो द रीजन ऐसा क्यों हुआ था, बट द थिंग इज मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि जिनको ऑलरेडी बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, और जो ओबीस थे उन लोगों को मैक्सिमम 2 या 3 दिन में उनको जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता था. वहां पे उनको ट्रीटमेंट दी जाती थी 5-6 दिन तक, बिकॉज उनका SpO2 लेवल 90 से नीचे चला जाता था, एंड दे वर सपोज टू गो टू द आईसीयू. और फिर उनकी अगर हेल्थ डिटोरिएट नहीं होती है, स्टेबल रहती है, तो उनको वापस जनरल वार्ड में लाया जाता था. पर मैंने ऐसे मैं लगभग इतने दिन में 65 to 70 पेशेंट्स को मैंने फेस किया जो मेरे वार्ड में आके गए या तो मेरे वार्ड में एडमिटेड थे ऑलरेडी. उसमें से 6 ऐसे लोग थे जो ओबीस थे, डायबिटीज से प्रॉब्लम, अब डायबिटीज का उनको प्रॉब्लम पहले से था. उन लोगों को आईसीयू में जाते मैंने देखा है, और वो लोगों को, जो लोग ओबीस नहीं थे उसकी तुलना में उन लोगों को ज्यादा तकलीफें हुई है. तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अपनी बेरियाट्रिक सर्जरी जब कराते हैं, कोई भी बेरियाट्रिक सर्जरी की खाली बात नहीं करता हूँ, अगर हम किसी भी तरीके से वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है कि हमारी इम्यूनिटी घटती है? ऐसा फील हुआ कुछ आपको अनिकेत? क्योंकि आपके फादर का भी रेगुलर फोन आता था कि बेरियाट्रिक सर्जरी कराई है तो शायद इम्यूनिटी घट गई है, इसीलिए उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है. तो मैंने आपके फादर इन लॉ को समझाया कि ऐसे कम से कम 20 केस मेरे पास हैं जो अनिकेत जैसे हैं, जो पूरे इंडिया में एडमिटेड हैं. हम लोगों ने भी काफी सारी इंक्वायरी की थी, काफी सारी इंक्वायरी की थी आपके कारण, मैंने भी काफी लोगों से बात की थी. तो लोगों ने बोला कि रिजल्ट पॉजिटिव काफी. आप खुद देखे वो सिंगर थी जो लखनऊ में एडमिट हुई थी, जो आके बाहर से आई थी,
उनको लखनऊ में एडमिट किया था तो उनका 9th या 10th रिजल्ट जाके नेगेटिव आया और उनको डिस्चार्ज किया। तो Yes. ऐसे इंस्टेंसेस काफी बने। पर आपको ऐसा लगता है कि अगर अपना अपना जो पतले लोग होते हैं या जिनका वेट लॉस हुआ होता है या जिनको डायबिटीज नहीं होता है, उनका कोई भी डिजीज में से, खास करके कोरोना में से बाहर निकलने में इजी रहता है? सर मैंने ऐसा नहीं फेस किया है एक्चुअली। जब मेरे रिपोर्ट्स इनकंक्लूसिव या इनडिटर्मिनेट आते थे तब ऑलवेज मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इट इज बिकॉज ऑफ माय सर्जरी कि मेरा रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ नॉलेज तो था नहीं। तो सिर्फ हम लोग ऐसे सोचते थे कि अपने में नेगेटिव इस तरीके से अगर देखने जाए तो क्या है, तो एक ही चीज थी कि मैंने सर्जरी करवाई है। तो यूजुअली ऐसा मानते हैं कि अगर सर्जरी करवाई है तो इम्यूनिटी कम हो गई हो, पर मेरे को जब मैं डिस्चार्ज हो गया, जब ये सब हुआ, जब हमने 100% मैंने ऐसा मान लिया कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इनएक्यूरेसी ऑफ द टेस्टिंग एंड द टेस्ट किट्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड, आज मैं ऐसा 100% कह सकता हूँ कि मेरी इम्यूनिटी कभी कम थी ही नहीं। और मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि जो चीज एक लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल से जनरेट हुई थी वो चीज आगे बढ़ सकती थी अगर मेरी इम्यूनिटी कम होती तो, पर वो बढ़ी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जो सिम्टम्स जनरेट भी हुए थे वो 2 से 3 दिन में 100% गायब हो चुके थे। और उसके बाद में मुझे इतने सारे पॉजिटिव पेशेंट्स, मैं सभी पेशेंट्स के बीच में रहा हूं जो लोग इतनी कफिंग करते थे, उनको कंटिन्यूअस उनको फीवर रहता था। वी यूज्ड टू शेयर द सेम बाथरूम एंड द वॉशरूम। मैं 30 अलग अलग लोगों के साथ में था। मेरे को डर एक ही चीज का था कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज मेरे को सिम्टम्स, जब मैं एडमिट हुआ तब तो कोई सिम्टम्स थे नहीं, पर इन लोगों के बीच में अगर मैं रहा और मैं कितना भी ध्यान रखूंगा, पर अगर एक ही प्रीमाइसिस में हम रहते हैं, वॉशरूम सबका सेम है, तो मेरे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और उस समय अगर मेरी इम्यूनिटी कम होती तो मैं 100% कुछ ज्यादा लेके आया होता, पर मेरे को वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद इम्यूनिटी घटी नहीं है पर 100% बढ़ी है। यस, एक्चुअली इस चीज को आज हमारी बात हुई थी। मैं मितवा अपने हाथ उठाया, मैं मितवा कुछ कहना चाहती है, उनसे पूछूंगा। पर आज अब तो मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने काफी कुछ पढ़ा है। पूरे विश्व में जो भी सर्जिकल सोसाइटी के हेड हैं उनके साथ मेरी ऑलमोस्ट वेबिनार पे हर हफ्ते मीटिंग हो रही है, इंक्लूडिंग चाइना, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएस, जहाँ पे ये बीमारी बहुत ज्यादा है। Yes. बहुत तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट को कंफर्मेटिव कोई मानता ही नहीं है। एक ही टेस्ट वो लोग कराते हैं, एक सीटी स्कैन चेस्ट का। अगर सीटी स्कैन चेस्ट का नॉर्मल है तो मतलब आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप घर जाइए, ये सिंपल फ्लू है आपके लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज को अब इतना कंफर्मली चारों तरफ मानने लग गए हैं। आज टीवी देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए। एक तो इस टीवी और व्हाट्सएप ने इतना परेशान कर रखा है सबको और इतना ज्यादा नॉलेजेबल बना दिया है कि आप सोच नहीं सकते लोग मेरे पास क्या क्या नहीं भेजते। मेरे को कभी कभी ये लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ कि हजाम। हाँ, जो मन में आता है वो मुझे भी फॉरवर्ड करते हैं और मुझसे लड़ते हैं कि ये चीजें सही हैं, आप लोग की डॉक्टरी गलत है। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो। पहले दिन एक बहुत जाने माने यहाँ के पत्रकार हैं, उनका फोन आया जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, और उनका फोन आया, मैसेज तो आया, फोन भी आया कि आप जितना 20, 25, 50 किलो आलू तो कम से कम इकट्ठा कर लो। मैं बोला सर ऐसा मत करो, अगर 50 किलो आलू हम सब इकट्ठा करने लगेंगे तो गरीब आदमी को आधा किलो आलू भी नहीं मिलेगा। तो पढ़े लिखे लोगों की सोच और विचार मुझे लगता है कि ठीक नहीं थी। और कोरोना के बारे में जितना मैंने जाना है, ये कोरोना की डेथ जो हुई है मैक्सिमम एक तो एजेड लोगों में होती है। दूसरा, कोरोना में इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, खास करके डायबिटीज और जिनको कार्डियक डिजीज होती है, उनमें ज्यादा है। और चूंकि ये पेंडेमिक है, महामारी, अगर आप याद करें तो जब प्लेग फैला था सूरत में तो उसके लिए तो दवा भी थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा खा के ठीक हो सकते थे, पर कहाँ ठीक हो पाए, कितने लोग मरे प्लेग में। जब डेंगू हुआ तो उसकी भी दवा थी, कहाँ ठीक बचा पाए आप सबको। जब H1N1 स्वाइन फ्लू हुआ था तब उसकी भी दवा थी, मुझे खुद को हुआ था, मैं बताता हूँ, मैंने दवा खाई थी, मैं ठीक हो गया, लेकिन सब तो ठीक नहीं हुआ। तो जब कोई बीमारी महामारी का रूप लेती है तो उस वक्त कुछ न कुछ मौतें होती हैं जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मितवा आप कुछ कहना चाहती थी? ऑल टू यू। यस सर, यस मितवा आपको सर।
Can you hear me, sir? Yes, we can hear you. Yes. I just wanted to say that this has nothing to do, the immunity has nothing to do with the surgery of lowering it down. It doesn't low down anyway. क्योंकि अगर अनिकेत को ऑलरेडी एक ही सिम्टम था, as he specified, the taste loss and the smell loss, तो इतने दिन 32 days में उन्होंने कोई सिम्टम नया डेवलप नहीं किया है. So that is because his immunity was stronger and it had already started fighting the disease. So that is a damn myth. And what I believe, I'm not a doctor or someone, but what I believe, when you pass a surgery, your organ starts to immune more, so you recover from the surgery. So उस टाइम तो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ रही है भैया, इसलिए तुम बाहर निकल उसमें से. यही बहुत एक अच्छी बात आपने बोली. आपकी बात पे हाँ. ध्यान, इम्यूनिटी क्या अगर इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है तो रिकवरी तुम्हारी सर्जरी में से आने ही नहीं वाली है. देखो, एंटीबॉडी होती है ना इम्यूनिटी, सब मानते हैं इस बात को कि एंटीबॉडी होती है. यस. आपकी एंटीबॉडी नहीं है तो इम्यूनिटी नहीं है. और आपको मैं बताऊं, एंटीबॉडी कहाँ बनती है? आपके लीवर में. सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर है. जब आप मोटे होते हो तो आधा लीवर तो काम ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसमें फैट जमा होता है. जब आप वेट लॉस करते हो तो लीवर काम करता है, और ये एंटीबॉडी बनती है आपके प्रोटीन से. तो जैसे लीवर पे से लोड जाता है, लीवर अपना 100% फंक्शन में आता है और वो एंटीबॉडी बना के बॉडी में डालता है. लॉन्ग टर्म ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये बोलती हो कि बेरियाट्रिक सर्जरी से इम्यूनिटी कम होती है. अगर होती तो हर बेरियाट्रिक पेशेंट को अभी तक तो कोरोना हो चुका होता, हर बेरियाट्रिक पेशेंट को कैंसर हो चुका होता. आपको पता है, डायबिटीज भी, जिस बेरियाट्रिक पेशेंट को तो डायबिटीज ठीक नहीं होता, और भी 50 तरीके की दूसरी बीमारियां हो गई होती, ये बेरियाट्रिक सर्जरी के पेशेंट को हो गया होता. तो ये आप दोनों की बात बिल्कुल सही है. और इसके पीछे मैं अवनी बहन का जरूर ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि अवनी से मेरी खुद की बात हुई थी. जिस तरह से तुमसे बात हुई अनिकेत, या आपके फादर से बात हुई, या मित्वा से बात हुई, उसी तरह से अवनी से भी मेरी बात हुई. बहुत स्ट्रेस में थी, उनके हस्बैंड को डायबिटीज भी है, उनको कोरोना हुआ, अवनी भी पॉजिटिव आई थी. तब तक है ना अनिकेत, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी मेरे पास था, और मेरे पास एक दूसरे पेशेंट है जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा. वो पेशेंट और उनकी वाइफ दोनों को कोरोना हुआ था. उनकी वाइफ नहीं रही अब, लेकिन पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ. वो सिम्टमलेस रहे, बिल्कुल सिम्टमलेस रहे. उनको तो कुछ भी नहीं हुआ. उनकी वाइफ जिन्होंने सर्जरी नहीं कराई थी और वो कराने वाली थी, अब पता नहीं क्या इशू था, मेरे को याद नहीं है ठीक से. उनको डायबिटीज था पर वो नहीं रही. उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, पर उनका पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ. तो उसी तरह से अवनी का जब मेरे पास फोन आया तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका था. मैंने अवनी को एक ही चीज बोला, अवनी तेरे को कोई सिम्टम नहीं है तो एडमिट भी मत होना. कल एडमिट होने जा रही हो ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी करने की जरूरत नहीं है. घर पे रहो, दवा लो, एकदम ठीक हो जाओगे, गारंटेड कुछ नहीं होगा. अवनी, व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? अवनी, कैन यू हियर इट? Yes, I can hear you. So, Please, yes, if you in can fact, video on also. Yes. Yeah. So, in fact, it was the best advice what I received from you, because as you mentioned, I was asymptomatic. I didn't had any symptoms. मुझे कोई भी symptoms नहीं थे from day one. And in fact, I was very surprised के like why my reports are positive, because not a single symptom. कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, and then to positive report. So I was very panic. And फिर आपसे बात हुई, निकिता से बात हुई, अंकिता से बात हुई, and even मितवा से भी मेरी बात हुई थी. So I feel very motivated. And then I thought, okay, fine, ठीक है, इसमें पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है. Just continue with whatever vitamin tablets are there, and proteins and everything, and no need to get admitted. And just I consulted the physician, that too for my sake, के okay fine, के मेरी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. But yes, my even SpO2 level from day one मेरे reports आए तब से 99 ही है. My BP level is also good. वहाँ पे मेरे ECG भी निकाला उन्होंने, that was also perfectly okay. So still I am in a dilemma, like why my reports are positive. तो मुझे भी कहीं भी ये लगता है कि शायद reports गलत है या सही है. I don't understand that. But yes, हाँ. ये अवनी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा. देखिए, कोरोना एक नई बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइड डिजीज बना दिया. और जब भी डिजीज कोई नोटिफाई होती है और आपको उसके सिम्टम आते हैं, आपके घर में किसी को होता है, तो गवर्नमेंट टेस्ट करती है. आज हम कोरोना 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 रो रहे हैं ना, 1 साल के बाद आप देखिएगा इसको फ्लू से ज्यादा कोई नहीं समझेगा. सिंपल फ्लू हुआ, उसको आप ऐसा बोल सकते हैं कोरोनिक फ्लू हुआ, और बात खत्म. फिर तो ना कोई ट्रीटमेंट की बात होगी. आप आपके जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, उसको भी पता होगा कि कौन सी 4 गोली देनी है मुझे, और मेरा पेशेंट ठीक हो जाने वाला है.
ये तो क्या हो गया कि एक अंधेरे जैसी कोई चीज आ गई, कहते हैं अंधेरे कमरे में रस्सी को भी हम सांप समझ बैठते हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारी आ गई जिसका ट्रीटमेंट किसी को पता नहीं। तो हमारे बड़ा प्रधान ने आके टीवी पे जब ये बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि भाई क्वारंटाइन हो जाओ, सब हो जाओ, ये महामारी फैल रही है, उसका मतलब ये था कि हमको अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं पता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर ये महामारी 130 करोड़ जनता में फैल गई और उसमें से 10 करोड़ लोगों को भी एडमिशन की जरूरत पड़ गई, तो ये चीज उनको भी बहुत अच्छे से पता थी कि हमारे पास 10 करोड़ हॉस्पिटल बेड्स नहीं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने शुरुआत में लॉकडाउन में डाला, जिसके कारण कम से कम जो लोगों को रोग नहीं था उनको हुआ नहीं, और जिनको था वो अपने घर में रहे तो किसी को दिया नहीं। ठीक है, तो आई कैन ऑलवेज रिस्पेक्ट, लेकिन जो एक नॉर्मल लोगों के अंदर फियर फैक्टर, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो आप लोगों ने तो सर्जरी करा ली, आप ठीक हो गए, इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, सारी बातें हो गई कि कोई भी सर्जरी कर इम्यूनिटी फैक्टर, एक नॉर्मल फियर फैक्टर भी लोगों में बहुत है, और एक आम पेशेंट से ज्यादा सो खुद को कोरोना हो चुका है, उससे ज्यादा कौन समझा पाएगा कि हाउ टू मूव फ्रॉम मेंटल फियर टू मेंटल फ्रीडम। ये क्या डर डर के क्या जिएंगे हम सारी जिंदगी, या हम प्रिकॉशंस के साथ एक अच्छी हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। प्रिकॉशंस के साथ मैं इस वर्ड को दोबारा यूज करना चाहूंगा कि हमको इसी तरह से डर डर के जीना है, ये लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, लॉकडाउन 6 जीना है, यही झेलना है अपनी जिंदगी में। कल मेरे वाइफ के साथ बात हो रही थी तो उसने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि मनीष, लॉकडाउन को छोड़ दो, तुम रोज काम पे जा रहे हो, मेरे बस एक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा रहे, और हमने फिल्में नहीं देखी, इसके अलावा तो हमारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे यहाँ तो मैंने सर्वेंट को भी आने दिया। और आज भी जब किसी से बात हुई तो होम सेक्रेटरी, जैसे मैंने आपको बताया कि होम सेक्रेटरी साहब ने खुद बोला कि सर्वेंट को नहीं बुलाना है। ऐसा एडवाइजरी भी हमने कब दिया, जो ये नया एडवाइजरी मुझसे मांग रहे हो कि सर्वेंट को बुलाना है, ये तो तुम लोगों ने खुद से बना ली डर के मारे। तो ये डर है ना, बहुत अंदर तक बैठा हुआ है हर इंसान, हर चीज को लेके। तो मितवा, जब अनिकेत ठीक होके तुम्हारे यहाँ आया, ठीक भी नहीं हुआ था उसकी, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई थी कि एसिम्प्टोमेटिक है तो घर भेज दो, तो घर आया। अब तुमको ऐसा तो डर लगा ही होगा कि इससे मुझे हो जाएगा या किसी और को हो जाएगा। यस सर, यस सर। झूठ नहीं बोलूंगी, बट हाँ मितवा, यू आर देयर, वॉइस। Aniket, yeah, you cannot hear me? yes. Okay. So when Aniket came home, I did not get my son along with me. मैं उसको अनिकेत के पास एक्सपोज नहीं किया 2-3 दिन, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी ऐसा ही था, क्योंकि when Aniket came home, he was not negative. उनको इसको एसिम्प्टोमेटिक की गाइडलाइन पे घर भेजा था। So मेरे दिमाग में I am a diabetic patient since last 10-11 years. So मुझे मेरा तो था ही थोड़ा वरी, पर with me I was ready to deal with it, but with my child I was not ready. So he was highly frustrated to see my son, to talk to him, be with him, play with him. But still, I did not get my son for 2 more days. After I just kept telling him कि तुम्हारे रिपोर्ट ठीक आ जाएंगे, फिर बच्चे को लेके आएंगे, तब तक he'll stay with my mom at my mom's house. So that fear always stayed with me because I did not have I had lack of knowledge basically. I was not aware of the actual scenario. So always ऐसा मेरे दिमाग में था। एक साइड ऐसा था सर, और दूसरी साइड ऐसा था कि अगर होने वाला होता तो 17 को जब अनिकेत आए, तब से 29 तक तो मुझे हो गया होता। अब तो नहीं हुआ, तो अब क्या होने वाला है? ऐसे करके आई केप्ट कंसोलिंग माय माइंड, पर दिमाग कुछ और सोचे, दिल कुछ और बोले, उसके सामने देख के, बच्चे के सामने देख के फीलिंग्स कुछ और आए। It was a very quick dilemma, but still I did not get him for 2 days. Then on the third day, I got my child back home. घर पे आके सब ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लकीली उसके दूसरे ही दिन पे 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए थे। We were out of danger. But yes, the fear stayed with me. जब SVP में 1st of April को मेरा और मेरे सन का टेस्ट करवाया, उसके बाद मैं घर आई, मुझे 14 डेज का क्वारंटाइन बोला था। वो 14 डेज में क्वारंटाइन में I could not sleep one whole night. Not because I was thinking of him. I kept thinking कि मुझे और मेरे बच्चे को क्या होगा। After the negative report also, वो मेरे दिमाग में ही था कि उसको और मुझे क्या होगा। अब क्या मैसेज देना चाहते? I totally feel कि this is you just have to be very
careful, take proper precautions, nothing else. इसमें कुछ नहीं होता है, किसी के साथ रहने से लग गया, तुम इतने शायद अनलकी हो तो ऐसा कभी हो सकता है, बाकी मैं तो रही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है. So nothing is going to happen. Just take proper precautions, wash your hands, wear your mask, avoid going out. I totally believe lockdown खुल जाए फिर भी 2-3 महीने कहीं मत जाओ, घर पे रहो. घर पे सब बनता है, होटल जैसा खाना भी बनता है, मूवीज भी देख सकते हैं, and this is the best time you get with your family. Sir, you are very unlucky, you have to come to the hospital today as well. We are lucky enough to have family at home. नहीं नहीं, इसी पे बात हो रही थी. जो वेरी गुड पॉइंट रेज बाय यू. एक्चुअली मेरी कभी हम लोगों की सरकार के साथ भी मीटिंग होती रहती है, काफी कुछ हम लोग से वो जानना चाहती हैं कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं. तो आई टोल्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि आप अगर डॉक्टर्स को क्वारंटाइन करेंगी, किसी को एक्सपोज हो जाने पे पुलिस वालों को करेंगी या सफाई वालों को करेंगी, तो मैडम आपके पास ना एक डॉक्टर बचेगा, ना एक पुलिस वाला बचेगा, ना एक कोई सफाई वाला बचेगा. चलाओगे कैसे, मुझे ये समझाओ. क्योंकि हमारे पास तो पेशेंट आने ही वाला है. अनिकेत एसिम्प्टोमेटिक था, उसने टेस्ट कराया, उसको पता चल गया. अगर वो टेस्ट नहीं कराता और घूमता रहता नहीं तो पता चलता, नहीं पता चलता. वो मुझसे भी मिल के गया. हाँ अनिकेत, याद है दुबई से आने के बाद हमसे मिल के गए थे. राइट. हाँ, तो हमारी पूरी टीम और पूरी टीम के हर खानदान के हर इंसान को तो क्वारंटाइन हो जाना पड़ता है. पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस चीज को हम बहुत समझते हैं. आप लोगों के लिए ये चीज नहीं है. एज अ सर्जन, जब HIV का जमाना था, ये 1900 में बात कर रहा हूँ, 90 की, जब HIV का रोग आया था, जो खून से, इंजेक्शन से या सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता था, तो उस वक्त हम सर्जन बहुत रिस्क पे. कोई पेशेंट को HIV हो, हम उनको ऑपरेट कर रहे हैं और हमें कट लग गया, तो हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया. और हम आज तक, मैंने अपनी जिंदगी में किसी HIV पेशेंट को इसलिए ट्रीटमेंट रिफ्यूज नहीं किया कि वो HIV पॉजिटिव है. उसको भी ट्रीटमेंट का राइट है और मुझे नहीं. मैं हर 6 महीने अपना टेस्ट कराता हूँ, क्योंकि मेरे से दूसरे पेशेंट, मैं हर 6 महीने अपने HIV के टेस्ट पिछले 25 सालों से कराता हूँ और मैं नेगेटिव आता हूँ. ये मेरी ड्यूटी है. लेकिन डरना वो नहीं, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये इन्फेक्शन एक ना एक, ये आपके साथ रहने वाला है. 0 इन्फेक्शन रेट इंडिया में कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं. ये आपकी जिंदगी का एक पार्ट बनने वाला है और इस पार्ट के साथ ही आपको जीना है और डरना नहीं है. तो इसके बारे में अवनी, जैसे तुम बोल रही हो कि मैं तो एकदम ठीक ठाक थी और मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी और आपके हस्बैंड पॉजिटिव थे, मोस्ट प्रोबेबली आपकी मदर इन लॉ भी शायद पॉजिटिव थी. Yes. आपके घर में सब कोई पॉजिटिव थे, तो आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आपके लिए आश्चर्य की बात थी. लेकिन आप, क्योंकि सिम्टम नहीं था. बट देन व्हाट इज द एडवाइस? क्योंकि आपके हस्बैंड भी मेरे हिसाब से ठीक हो गए, मदर इन लॉ भी ठीक हो गई. Yes. एडवाइस की रियली इट इज सो डेंजरस. ये फ्लू जैसी चीजें होनी है, ध्यान रखना है. जैसा बहुत अच्छे से मितवा ने समझाया कि आपको अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, ध्यान रखना है. क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा और जिंदगी पटरी पे लौटेगी, जिस दिन जिंदगी पे पटरी पे लौटेगी, वुहान जैसी स्थिति होगी, फिर से भीड़ बढ़ेगी, थिएटर फिर से खुलेगा. मैं भी चाहता हूँ खुले, तभी हर्ड इम्यूनिटी भी आएगी. तो अवनी, लगता है आपको कि अगर मान लीजिए हो भी जाता है कोरोना, आप अपनी बात ना करें, अपने घर में भी बात करें, से ट्रीटमेंट लिया जाए, बहुत कुछ नहीं किया जाए, तो इससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत है? What I think, sir, like there is nothing to worry. अगर आपको initially पता चल जाता, now everybody knows like what are the symptoms. ठीक है, तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि okay, these are the symptoms and you are getting infected. तो आपको early stage में पता चल जाता है. तो start taking precautions immediately. And अगर नहीं भी है, फिर भी अभी तो बहुत सारा है immunity बढ़ाने के लिए. You have various things. So start boosting your immunity and start taking multivitamins and have your proteins and all. And of course, take due precautions. Because मेरे तो अगर मैं बात करूँ तो मेरी हस्बैंड की बहुत ही बुरी हालत थी. Like he was not even able to stand. वो गिर जाते थे खड़े खड़े, वो 2 बार ऐसे गिर गए थे. So I have to be with him all the time, everywhere. So in fact, like you know, I feel very lucky कि मैंने ये surgery करवाई, and because of which my immunity is very strong, though it's been only 5 months. And to my surprise, like जो tablets उनको दी जा रही थी SCG में, they are Zincovit and vitamin C only. जो Zincovit हम ले रहे पिछले 5 months से.
So that's what only I will say, like, take proper vitamin tablets and proteins and take due precautions, and डरने की कोई जरूरत नहीं है. If it's initial stage and if you take precautions, definitely you can come out of this. And it's not a big a fear, like, कि आप डर के बैठ जाओ और आप ना जाओ. Because I am a working woman, so I know अगर अब lockdown खुलेगा तो I have to go. I cannot sit at home now because it's already 2 months, so I have to go. But yes, take due precautions and you will be absolutely fine. कब तक डर के बैठे रहेंगे? हाँ, अभी इसके अंदर अनिकेत, एक चीज बताओ, तुम तो बहुत पहले कोरोना में, मतलब इनिशियल गुजरात के फ्यू पेशेंट में सीनियर मोस्ट पेशेंट्स, एज यू हैव करेक्टली मेंशन, तो सीनियर मोस्ट पेशेंट को कितना अफेक्ट करता था टीवी न्यूज और व्हाट्सएप, क्योंकि इसमें जितनी भी जानकारियां आती हैं, ये अब तुम मानते हो ना कि 90% तो बेकार की होती है, किसी काम 99% बेकार है. 99%. वो कितना इफेक्ट आपको और आपके फैमिली मेंबर्स दोनों को कितना करती थी? सर, जितना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल वर्ड मैंने इतने दिन में सुना है, मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना है. हम जहां भी जाते थे, जिसको भी पूछते थे, जिससे भी बात करते थे, हमको एक ही चीज बताई जाती थी कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन हम डिस्चार्ज नहीं दे सकते, भले उसको कुछ नहीं हो रहा है. तो ये सब चीजें जो न्यूज में आती थी और व्हाट्सएप मीडिया अपना, ये जितना भी सोशल मीडिया पे जो भी कुछ न्यूज आती थी, वो इतनी अफेक्ट जितनी मुझे करती थी उससे कई गुना ज्यादा मेरी फैमिली को करती थी. क्योंकि मेरे को कोई फोन नहीं करता था. लोगों को जिनको पता था कि आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, दे वर नॉट कॉलिंग मी. बट मेरे घर वालों को लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे कि वो बात कर सकता है. इतनी इतनी मतलब कहने जाए तो लोगों को ये व्हाट्सएप और ये मीडिया इतनी अफेक्ट करती है. और आप देख लीजिएगा, लॉकडाउन खुलने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास इतने सारे पेशेंट्स होंगे, बिकॉज ये सब पूरे दिन ये न्यूज देख देख के सिर्फ एक ही चीज होती है, डिप्रेशन आता है. और जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको रात को ऐसा लगता है कि मेरे को ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा है सडनली. मेरे को पहले दिन हुआ था भाई. मेरे को पहले दिन जब कोरोना का था, उसी दिन फीवर था, दूसरे या तीसरे दिन तो मैंने वसीम को बोला कि टेस्ट कराओ क्या. फिर मैंने बोला कि अरे डॉक्टर हो के मैं कैसी बात कर रहा हूँ, अगर मैं सब ठीक ठाक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं तो रहने दो. और अब तक तो हो के ठीक भी हो गया होगा, मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराया. बिकॉज वी आर एक्सपोज टू पेशेंट्स, और हम पेशेंट को ट्रीटमेंट की ना नहीं बोल सकते. हमसे पेशेंट को होना नहीं चाहिए, वो प्रिकॉशंस हम पूरी लेते हैं. और वो तो हम हर सर्जरी में लेते हैं, हमेशा लेते हैं. जब कोरोना नहीं था तब भी लेते थे. yes. तब भी हम अच्छे से कवर होके जाते थे. तब भी हम इस तरह से कोई भी हमारे किसी पेशेंट को इन्फेक्शन ना. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी बात बोली कि व्हाट्सएप ये नीम हकीम खतराए जान. जिसको नॉलेज नहीं है वो सबसे ज्यादा नॉलेज देता है व्हाट्सएप पे. right. जिसने अपनी जिंदगी में एमबीबीएस के कॉलेज में कदम नहीं रखा होगा, वो एमडी डॉक्टर से ज्यादा बात करता है और वो ज्यादा आपको समझाता है. अब हम बिजनेस की भी बात करेंगे. अनिकेत और अवनी से बात करना चाहूंगा. पहले अनिकेत, तुमसे ये क्वेश्चन कि तुम बिजनेसमैन, yes, काम तो करना ही है, धंधा तो करना ही है, और धंधा कभी अकेले तो होता नहीं. कोई इंसान धंधा अकेले से, किसी के पास वर्कर होते हैं, किसी के पास किसी दूसरे तरीके के स्टाफ होते हैं. तो अब इस डर से कि फलाने को कोरोना है, अगर वो मेरे यहाँ आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या इस डर से कि, तो ये क्या, ये डर सही है कि किसी न किसी दिन तो बिजनेस चालू तो करना ही पड़ेगा? अनिकेत, भले सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भले मास्क पहने. ये बात पे मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों का एक यूनिट है जिसमें हम लोग ये मास्क और जो पीपी, डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए जो पीपी किट बनती है, उसका फैब्रिक हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं. तो फ्रॉम द डे वन मेरी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, फैक्ट्री चालू है, काम चालू है, स्टाफ आता है. और ब्रदर, जो मेरा ब्रदर था, उसका 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद से वो ईच एंड एवरी डे 3 to 4 hours एवरी डे ही इज गोइंग टू द ऑफिस. और मैं 29 को डिस्चार्ज हुआ. उसके 4 दिन बाद मेरा 2 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद मेरा भी 14 डेज का पीरियड खत्म हो गया है. और आई हैव ऑल्सो ज्वाइंड द ऑफिस सिंस लास्ट 3 days. और 3 दिन में मैंने वो देखा कि सब लोग काम कर रहे हैं. हम लोगों ने जितने भी प्रोटेक्शंस लेने हैं, वी हैव केप्ट सैनिटाइजर ईच एंड एवरीवेयर. हम लोगों को आने नहीं देते हैं जो बाहर से आते हैं. मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो कोई
आके ऑर्डर नहीं देता है, जो कुछ भी होता है वो काम फोन पे होता है. पर दिस इज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर. ये करना ही है. लॉकडाउन अभी 10-15 दिन रहेगा, उसके बाद इकोनॉमी भी इतनी इफेक्ट कर रही है कि, और सब लोगों को अर्निंग तो चाहिए ही, तो कभी ना कभी ये चीज हमको फेस करनी ही है. और क्यों ना आज से करे, तो जितने भी प्रिकॉशंस है वो लेकर अगर आप काम चालू करते हो तो देयर इज नो नीड टू वरी. ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें ऐसा आप मान लेते हो सोशल मीडिया को देख के कि ये हो गया तो मतलब आप वापस घर पर नहीं आओगे. इसमें कुछ नहीं होता है. और ओनली प्रिकॉशंस इज द thing which you need to do, otherwise everything is all right. वो जैसे HIV के वक्त गवर्नमेंट ने बोला ना कि जस्ट कांट स्टॉप समथिंग, सो दे प्रमोटेड कि भाई यूज दिस यूज दैट, बट यूज दिस, एंड पीपल गॉट एजुकेटेड. Yes. अवनी, तुमसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे जब शुरुआत हुई इस सर्जरी की, इस डिजीज की, कोरोना डिजीज की शुरुआत हुई, गवर्नमेंट की गाइडलाइन हम लोगों की थी कि कोई भी इलेक्टिव सर्जरी नहीं करनी. उसका एक रीजन था, हॉस्पिटल में बेड खाली रखने. भगवान जाने कितने पेशेंट एक बार में आ जाए, और पता चल रहा है एक बेड पे हर्निया का पेशेंट पड़ा है, एक बेड पे अपेंडिक्स का पेशेंट पड़ा है. तो बोला कि जो सर्जरी आप अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करिए, इमरजेंसी सर्जरीज खाली करिए. और अब कोरोना स्टेबलाइज हो गया है इंडिया में. अब काफी सारे हॉस्पिटल है जो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ये सर्जरी हम कर सकते हैं. तो डू यू थिंक, ओके, अब गाइडलाइंस तो हमारे पास है. मैं खुद ऑसी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ. मैंने गाइडलाइंस बनाई है अपनी 12-14 लोगों के साथ मिलकर. स्पेन में काम शुरू हो चुका है, इटली ने काम शुरू कर दिया है, खाली यूके ने काम शुरू नहीं किया, बाकी हर जगह काम शुरू हो चुका है. तो डू यू थिंक कि ये कोरोना करके ओबेसिटी, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसको इसको बढ़ाते रहना चाहिए, कि अगर सारे प्रिकॉशन डॉक्टर आपके ले रहे हैं और आपके डॉक्टर आपके कॉन्फिडेंस देते हैं तो कराना चाहिए? I will say like definitely you should not think even twice. आपको तुरंत ही सर्जरी करनी चाहिए and you should go immediately for a surgery because only thing I repent today is कि मैंने क्यों इतना लेट सर्जरी करवाया. I should have gone maybe 1 or 2 years before. So आज सिर्फ 5 months हुए हैं, so it should have been more months because I am very happy. I was a diabetic patient और सर्जरी के बाद अभी मुझे डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है. So because of that I'm very happy because I have seen like my husband is obese and he was a diabetic, highly diabetic patient. उनको O2 भी कम हो गया था. He was kept on oxygen. So I was very afraid उनका देख के and I thank God कि चलो मैंने सर्जरी करवाई तो I am okay कि मुझे ये सब factors नहीं है अभी. So I will advise everyone like don't think twice. अगर आपने सर्जरी करवाने का आप सोच रहे हो तो अभी दोबारा मत सोचिए एंड प्लीज गो फॉर इट इमीडिएटली क्योंकि सारे प्रिकॉशंस ले ही रहे डॉक्टर्स एंड यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट. प्लीज गो फॉर इट. मितवा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा एंड दिस मस्ट बी माय लास्ट क्वेश्चन. कि चलो अनिकेत से एक चीज पूछी मैंने कि आप बिजनेस करना चाहोगे कि नहीं. बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल खुद से लोग मारेंगे. यस. अवनी से मैंने पूछा, शी इज अ वर्किंग लेडी, की सर्जरी हमको अभी करानी चाहिए कि नहीं. तो उसकी क्वेश्चन कि आपको जरूर करानी चाहिए, इसमें कोई देख एज ए न्यूट्रल पर्सन. अब तो तुम डर से भी बाहर निकल गई, हस्बैंड भी घर आ गया, नेगेटिव है, बेटा भी साथ में है, पूरा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है कि कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. हमारे ससुर जी ने भी कराई है, हमारे घर में किसी और ने भी कराई है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी कराई है, सब हेल्दी. तो आज के दौर में अगर सर्जरी के डायरेक्टिव ऐसे सरकार के हैं कि हाँ आप नॉर्मल सर्जरी शुरू कर सकते हैं, तो तुमको ऐसा लगता है कि ये सर्जरी कराने के बेनिफिट बहुत ज्यादा है, करानी चाहिए, लोगों को कोरोना करके इस सर्जरी से दूर नहीं रहना चाहिए? जस्ट ओपिनियन. राइट. नो आई टोटली अग्री, करवानी चाहिए सर, बिकॉज इसके बेनिफिट्स तो है ही. और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू आर बूस्टिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. So what you are not getting your voice. I'm not getting your voice. Mithwa, I'm not getting your voice. Can yes. you hear me, sir? Yeah. Yeah. So I believe that surgery should surely be done because उसके बहुत सारे benefits है. सबसे main benefit मैंने जो अनिकेत में देखा है is boosting a lot of own confidence. That is what I have noticed in him. Plus health के तो सारे issue resolve हो जा रहे हैं. Health में तो कुछ रहता ही नहीं. You have a new life to go with. So surely if you have the like if you think you will be able to have a strict diet on yourself, you should surely do that.
यही I strongly believe that this. आई वांट टू से कि जैसे अनिकेत तुमने बोला कि मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने प्रिकॉशंस अपनी जगह रखे और काम शुरू किया, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो आज की तारीख में डिजीज को पालें, ओबेसिटी डायबिटीज को, कि अपने डॉक्टर पे भरोसा करें कि वो सारा प्रिकॉशन ले ही रहा होगा और अपने को इस सर्जरी में जाना चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन अनिकेत? अनिकेत Aniket, unmute. हाँ, यस यस सर, आई वुड से कि ये सर्जरी आप उसको गलत बोल रहे हैं। ये इसका टर्म सर्जरी नहीं है, ये ब्लेसिंग है। दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम साइंस which is given through you to us. ये इतनी अच्छी सर्जरी है कि इसमें डिसएडवांटेजेस तो कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। जो भी है वो एडवांटेजेस है। और मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहो तो मैं 29 इयर्स ओल्ड हूँ। 29 साल में मेरा सिर्फ ओबेसिटी के अलावा मेरे को कोई इश्यू नहीं थे। आई वाज नॉट हैविंग कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई डिजीज मुझे नहीं थी। मैंने ये एडवांस में इसलिए करवाया था कि मेरे को कुछ हो नहीं। मेरे को काफी सारे लोग मिले थे जो ऐसा बता रहे थे कि अभी क्या जरूरत थी, अभी तो तू 29 साल का है, अभी तो बहुत टाइम है। तो मेरा सिर्फ उन लोगों को एक ही चीज कहने की थी कि आज क्यों नहीं करवाए, जब कल सब कुछ बिगड़ जाएगा, हाथ में कुछ रहेगा नहीं, डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा और वेट तो बढ़ता ही जा रहा था। वेट तो ऐसा न था नहीं कि वो स्टेबल है और उतना ही रहने वाला है। जब कुछ बढ़ेगा, डिजीज घर में आएगी, उसके बाद करवा के क्या फायदा है। हाँ, वही बात होगी कि आज केदारनाथ जाओ तो सबको लगता है कि बस ये मुक्ति धाम के दरवाजे पे पहुंच गए, भले ने कम उम्र में चले गए तो चले गए। यू आर वेरी राइट। तो मेरा जो तुमसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है अनिकेत, कि इस माहौल में कोरोना कोरोना कोरोना, चारों तरफ कोरोना, आप किसी से बात नहीं करते हो, और इस भय को, मतलब है ना, सी फियर इज वेरी सब्जेक्टिव। 5-7 दिन पहले एक अनाउंस किया अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, रात को 12 बजे लॉकडाउन में सब कोरोना भूल के सब्जी की लाइन में लग गए थे। सट के लगे थे, दबा के लगे थे, और मेरे को पता नहीं था। मैं यहाँ से जा रहा था, मैं तो ट्रैफिक जैम में फंस गया। मैंने बोला ये क्या हो गया सडनली? तो पता चला कि 12 बजे के बाद कंप्लीट लॉकडाउन है और सारा फियर फैक्टर पता नहीं कहाँ चला गया। और जितने लोग मेरे को ज्ञान देते थे रोज, वो उनको मैंने सब्जी की लाइन में देखा था, सटे सबको देखा था घर के बाहर सब्जी के लाइन। तो कोरोना है, उसके साथ ध्यान रख के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। मितवा ने बहुत पॉजिटिवली तरीके से उसको सपोर्ट किया, वो आगे बढ़ रही है। उसको ये समझ में आया कि घर के किसी मेंबर को कोरोना हो जाए तो हम छोड़ नहीं सकते, और घर के मेंबर अगर हम सब साथ में रहेंगे, जुड़ेंगे, तो अवनी से बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अवनी ने अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड की पूरी सेवा की। इस प्रोसेस में उसको हुआ, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सर्जरी कराने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये बात एक इनडायरेक्ट फैक्ट है। अभी किसी ने मेजर नहीं किया उसको, इसके ऊपर कोई पेपर नहीं है। सर्जरी कराने से आपको कोरोना हो जाएगा और आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या इस कोरोना टाइम्स के अंदर जब आप काम शुरू कर सकते हैं तो आप सर्जरी भी शुरू करा सकते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता अनिकेत? 100% सर। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम सर्जरी करवाएंगे, तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि आप डिले मत कीजिए ये चीज को। बिकॉज आप अगर सर के पास जा रहे हो तो यू आर इन टोटली सेफ हैंड्स एंड ही हैज बीन गॉड टू मेनी ऑफ अस। और उनकी टीम इतनी अच्छी है, और नोबेसिटी सिर्फ उनकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर और सर्जरी के हिसाब से जानी जाती है। पूरे इंडिया में नहीं, अब तो वर्ल्ड में भी नाम सुने हैं लोगों ने सर के। तो उन लोगों से मेरी एक ही विनती है कि अगर आप कल करवाना चाहते हो तो आप आज करवा लो, पर उसको डिले मत करो, बिकॉज इसमें आप ही का नुकसान है। और कल करवाना है तो आज क्यों नहीं करवा रहे हो? लॉकडाउन से ऐसी कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। सर जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, और दैट इज बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ ओनली। तो आप बिल्कुल सोचे बगैर गो फॉर सर्जरी। जितने लोग सर्जरी सोच रहे हैं उनके लिए मेरे को खाली एक बात कहनी है कि चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा है,
तो हम लोग भी पूरा टेस्टिंग करते हैं, पूरे प्रिकॉशन अपनी तरफ से रखते हैं, पेशेंट के कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करते हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में, और उसके में जरा भी हमें डाउट होगा तो हम सर्जरी, कोई भी सर्जरी नहीं करेगा। सिर्फ बैरिएट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कुछ सिंपल सा ऐसा स्टोन है जिसमें पेन नहीं हो रहा है तो उसकी भी सर्जरी कोई नहीं। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी से भागना क्यों नहीं है? बिकॉज वन हैंड हम डॉक्टर्स भी उसको प्रमोट करते हैं, समाज भी प्रमोट करता है कि इट इज अ डिजीज एंड इट इज अ ऑनगोइंग डिजीज, और इस डिजीज में आपको डायबिटीज भी हो रही है, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी हो रहा है, बैक पेन भी हो रहा है, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर भी हो रहा है। और एक तरफ हम बोलते हैं कि नहीं भाई मत करो उसको, 6 महीने डिले कर दो, साल भर डिले कर दो। सांस की तकलीफ है, लोगों को मैंने सीपेप पे मोटापे के कारण जाते देखा है, बाईपेप पे जाते देखा है, और एक तरफ आप बोलते हैं कि चलो इस बाईपेप के साथ 1 साल और जियो, नहीं करानी है सर्जरी, अभी कोरोना है, जाने दो। तो ये डर के लिए आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। थैंक यू वेरी मच अनिकेत, थैंक यू वेरी मच अवनी, एंड अ स्पेशल थैंक टू यू मित्रा, बिकॉज यू कैन बी वेरी न्यूट्रल। मतलब तुम गधे को गधा बोल सकती हो, सर्जरी करा के ठीक हो गए, जैसे यू वेरी क्लियर, वेरी कैटेगोरिकल कि भाई वो आया तो मुझे डर था, मैंने 2 दिन अपने बेटे को नहीं आने दिया, व्हाटएवर मे बी द रीजन। सो यू कैन बी वेरी कैटेगोरिकल जब तुम इस चीज को एंडोर्स करती हो कि नहीं, कोरोना हमारी जिंदगी को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट नहीं करता है, और हम अपने रूटीन कामकाज को प्रिकॉशन के साथ, आपको अपने प्रिकॉशन रखने हैं, अनिकेत को फैक्ट्री में अपने प्रिकॉशन रखने हैं, और हमको हमारे प्रिकॉशन रखने हैं। प्रिकॉशन के साथ आप आगे बढ़ो जिंदगी। आई थिंक दैट इज द मैसेज वी वांटेड टू गिव टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच for coming on this platform. And Thanks for having us, sir. thank you, and we'll meet soon. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. Take care. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. Thank you, Mitwa. Thank you.